Good morning, class 10th. Welcome to your science class. Students, in today's video lecture, we are going to discuss some of the characteristics of modern periodic table, and we will also discuss some merits or advantages of modern periodic table. Okay, students? So, let's get started today's video lecture without wasting any time. Okay, students? So class 10th, characteristics of modern periodic table. टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, किस तरीके के एलिमेंट्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की. मेन ग्रुप एलिमेंट्स हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, बट आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1 and 2 ऑन द लेफ्ट साइड एंड ग्रुप 13 to 17 ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स. कौन कौन से? ग्रुप 1 and 2 और ग्रुप 13 to 17. वाई? बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट. इन एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट शेल्स जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट है. उसका क्या मतलब है कि जो इनकी कंप्लीट शेल्स हैं, उन इनकम्प्लीट शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 8 प्रेजेंट है. बिकॉज फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स शेल्स हम उनको बोलते हैं जिनमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. नोबल गैसेस किसको बोलते हैं हम? ग्रुप 18 की, विच इज ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कंटेन्स नोबल गैसेस, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. मेंडलीव ने इसको जीरो ग्रुप की तरह रखा था. Their outermost shells contain 8 electrons. These are fully filled electrons except only helium, which has only 2 electrons. And what are the main characteristics of noble gases? The main characteristics of noble gases are they have 8 electrons in the outermost shell only except helium, which has 2 electrons. And नेक्स्ट वन इज देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो. इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है वो जीरो है. वाई? बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव 8 electrons in their outermost shell, which means they have completely filled electrons. So as they did not have any free electrons, so their combining capacity is zero. They do not react and so also they are inert. हम इनको inert इसलिए बोलते हैं because they do not react with anyone and all the members are gases, so these are also known as inert gases because all the elements present in present in inert group is known as inert gases or noble gases. Transition elements. The middle block of elements that is from group 3 to group 12 all called transition elements. Why? Because their 2 outermost shells are incomplete. इनकी 2 outermost shell, याद रखना 2 outermost shells जो हैं वो incomplete होती हैं. Since these elements represent a transition. Transition क्या है बच्चे? Transition means change from the most electropositive element to the most electronegative element. They are named as transition elements. क्या characteristics है इन elements की? ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स. ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मेटल्स हैं और इन सब एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज दीज ऑल आर मेटल्स एंड वी ऑल know that metals are good conductors of heat and electricity. Some of these elements get attracted towards magnet because of electromagnetism. ठीक है. Most of these elements are used as catalyst. What is a catalyst? Catalyst are those substances which by presenting in a reaction जो है रिएक्शन में एक प्रेजेंट होकर उसकी स्पीड को फास्ट करते हैं. दे एग्जिबिट वेरिएबल बैलेंसेस. इनकी क्योंकि आउटरमोस्ट शेल्स टू इनकम्प्लीट होती हैं तो इनकी वैलेंसेस जो है वो वैरी करती हैं. सबकी वैलेंसी का एक सेम ट्रेंड नहीं है. वैलेंसेस इनकी आपस में वैरी करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ मूव फॉरवर्ड. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. These elements are also called rare earth elements as are shown separately below the main periodic table. जिनकी बात मैंने आपको कल भी की थी वीडियो लेक्चर में. लेंथेनाइड्स, इनको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स. जो 14 एलिमेंट्स की क्या है? 2 सीरीज हैं. लेंथेनाइड्स इज फ्रॉम 58 to 71 एंड
इनको प्लेस किया गया है सेम लैक्टिनम के बाद इन द सेम पोजीशन दैट इज फ्रॉम ग्रुप 3 एंड पीरियड 6 बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज रिजेम्बलेंस बिटवीन दैम लैंथिनम एंड 57 एंड 58. इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. वाई? बिकॉज ताकि जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका डिस्टर्बेंस खराब ना हो. द सेकेंड सीरीज इज ऑल्सो ऑफ 14 एलिमेंट्स विच इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड्स. इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 90 to 103, thorium to lactinium, and they are also placed lactinium नहीं है बच्चे, ये लॉरेंसियम है. ठीक है, थोरियम टू लॉरेंसियम. इनको जो है इनको भी 89 एलिमेंट एक्टिनियम के बाद फॉलो अप किया गया है सेम पोजीशन ग्रुप 3 और पीरियड 7, बट फॉर कन्वीनियंस दे आर ऑल्सो शोन बिलो द पीरियोडिक टेबल सो दैट देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस टू द मेन पीरियोडिक बॉडी. पीरियोडिक टेबल की जो मेन बॉडी है उसको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो. द सेकेंड इन ऑल रेयर अर्थ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स 3 outermost shells are incomplete, so that is why they are known as inner transition elements. transition elements में कितनी outermost shells incomplete थी? 2, तो उनको ट्रांजिशन बोला गया. इसकी एक और है उससे ज्यादा, 3 है, तो इसको इनर ट्रांजिशन के अंदर. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द एलिमेंट लैक्टिनम इज नॉट अ लैंथेनाइड. इसके आगे वाले एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स हैं, ये नहीं है. एक्टिनियम भी एक्टिनॉइड नहीं है, उसके आगे के एलिमेंट्स क्या हैं? एक्टिनॉइड्स बोला गया है उनको. ठीक है, तभी उनको सेपरेट बॉडी में रखा गया है. ठीक है, आई विल शो यू स्टूडेंट्स. Look at the periodic table, which is also known as long form of the periodic table. These are first 2 groups, representative elements, and these are from 13 to 18 groups. These are also known as representative elements or main elements. ठीक है, from 3 to 12 these elements are known as transition elements. These elements are known as transition elements from group 3 to group 12. and जो आपके ये जो फॉलो कर रहा है यहाँ से 57 से, इसको लैक्टिनाइड्स बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और 89 के आगे जो है 90 to 103 इनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं. और इन दोनों सीरीज को जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज है इनको हम बोलते हैं रेयर एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, ग्रुप 18 जो है दैट इज ऑफ नोबल गैसेस. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऊपर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, नीचे हम एटॉमिक सिंबल, और बीच में हम सिंबल लिखते हैं एलिमेंट का नेम, ऊपर एटॉमिक नंबर और नीचे एटॉमिक मास. ठीक है, ये लाइट मेटल्स है. ठीक है, इस साइड के जो है ये क्या है? लाइट मेटल्स. और ऊपर जो है आपको ओल्ड ग्रुप नंबर्स भी इनके बताए गए हैं. फर्स्ट का 1A, 2 का 11A, 3 का 111B. इस तरीके से जो है सबको नाम दिए गए थे मेनली पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक ग्रुप में उसको ये नंबर्स दिए गए हैं. ठीक है, ये इन दोनों का आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो टिल डेट जो है अभी तक इसको फॉलो किया जा रहा है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी अलग अलग बताया गया है. आई होप नाउ आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से क्लियर हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ चिल्ड्रन, लास्ट वन इज मेटल्स. मेटल्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कली मेटल्स क्या होगी? विच वन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स अस बेसिस, एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स भी वही हुए विच वन रिएक्ट विद वाटर गिव अस बेसिस. बट इनको अर्थ मेटल्स इसलिए बोला गया हुआ है बिकॉज these all elements are present in earth's crust. Okay students, occupy group 1 and group 2 respectively. First alkali metals is in group 1, alkaline earth metals is in group 2. अल्कली मेटल आपने 8th क्लास में भी ये चीज पढ़ी होगी कि इसी वजह से उनको कैरोसिन में क्या किया जाता है? प्रिजर्व करके रखा जाता है ना. आपको 8th क्लास में क्वेश्चन, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन. ठीक है, वाई? बिकॉज दे ऑक्सीडाइज्ड, रीडली गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे एक आपको टेबल दिया गया है. एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम. एटॉमिक नंबर्स दिए रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी, ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, ये आपको बताया गया. ये मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स. Last one is non-metals. Non-metals occupy the right-hand portion of the periodic table. Strong non-metallic elements, that is halogens and C halcogens,
ऑक्युपाई ग्रुप 17 एंड ग्रुप 16 रिस्पेक्टिवली। अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी शो किया, दीज आर नॉन मेटल्स। हेलोजन इज एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड मीनिंग साल्ट प्रोड्यूसर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हेलोजन्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस शेल एंड सो आर मोनोवेलेंट। ओके स्टूडेंट्स, ब्रोमीन एक ऐसा जो है लिक्विड है, नॉन मेटल तो है लेकिन ओनली लिक्विड नॉन मेटल है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके के ये जो है हेलोजन्स का ग्रुप बताया गया। ओके बच्चे, कौन से गैस हैं, कौन से लिक्विड्स हैं, ठीक है बच्चे। और कलर कैसा है, फ्लोरीन का ग्रीनिश है बट मोर येलो है, ग्रीनिश येलो, डार्क रेड लिक्विड, डार्क पर्पल। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ चिल्ड्रन, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स आर द एलिमेंट्स दैट शो मिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मेटेलाइट्स क्या होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दे आर प्रेजेंट अलोंग द डायगोनल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 13 एंड गोइंग डाउन टू पीरियड ग्रुप 16 पोलिनियम। ये जो है ग्रुप 13 से स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, ग्रुप 13 तक जा रहे हैं। लुक स्टूडेंट्स, यहाँ से बोरॉन से ग्रुप 13 से होते हुए कहाँ तक जा रहे हैं, पोलिनियम तक। ठीक है बच्चे, आई होप ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। So students, they are present along the diagonal line starting from group 13 boron to going down to group 16 polonium. Position of hydrogen is not certain, thus it can be placed in both group 1 एंड ग्रुप 7। अगेन इसकी पोजीशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी सर्टन नहीं है। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। रिप्रेजेंटेटिव पीरियोडिक टेबल फॉर 8 ग्रुप्स अप टू कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये हमें इधर टेबल में दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। The position of an element in the periodic table is generally determined by its electronic configuration. For example, sodium की electronic configuration अगर 281 है ना, that means it has 3 shells and 1 electron is present in its outermost shell, so it is placed in period number 3. Why? Because it has 3 shells. तो 3 shell से हमें क्या पता चला, पीरियड नंबर, दैट मीन्स इसका पीरियड नंबर क्या है 3, एंड 1 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, उससे हमें इसका क्या पता चलता है, ग्रुप नंबर। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स का हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओनली एक्सेप्शनल केस है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये पैटर्न फॉलो नहीं होता, एक्सेप्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी सभी एलिमेंट्स का आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी शेल्स हैं, दैट विल टेल अस अबाउट पीरियड नंबर, एंड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट विल टेल अस अबाउट ग्रुप नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ मूव फॉरवर्ड, हम ये जो है देखेंगे कैसे ये पीरियोडिक टेबल में कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर टेबल, ग्रुप्स ये हैं आपके, पीरियड्स ये हैं, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप्स आ जाएंगे, इस तरीके से पीरियड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, कितने पीरियड थे, 8 पीरियड थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी बच्चे, ऐसे ये हमें 4 ही पीरियड बताए गए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ग्रुप्स बच्चे हमें कितने हैं, हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, और हमारे पास पीरियड्स कितने हैं, 7। 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला गया है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला गया है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आपको पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स अप टू कैल्शियम जो है दिए गए हैं। इस तरीके से इनको, ये सिर्फ आपको बताया गया कि 1A 2A 3A करके कैसे लिया गया है 7 ग्रुप तक, ठीक है। ओके बच्चे, ये 0 ग्रुप किसको बोला गया था, नोबल गैसेस को। आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया, ठीक है बच्चे। अभी हम जो है मैरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके स्टूडेंट, जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहा गया है। Advantages or merits of the modern periodic table. Students, following points overcame the defects of Mendeleev periodic table. That is why it was accepted by scientists across the world till date. Position of isotope. All isotopes of an element have the same atomic number, therefore उनको same position modern periodic table में दी गई। Anomalous pair जो थे, जो anomaly regarding all these pairs disappears when atomic number, जब atomic number के बेस पे इसको लिया गया as a basis for classification। जैसे कोबाल्ट का atomic number 27 है, would naturally come before nickel because इसका atomic number क्या है, 28। Even though its atomic mass is little more than that of nickel, but हमारा basis for classification क्या है, atomic number। Third one is electronic configuration. This classification is according to the electronic configuration of elements.
व्हाट डज दिस मीन? द एलिमेंट्स हैविंग अ सर्टेन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनको सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया. इट रिलेट्स, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिलेट करता है. एलिमेंट्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट पोजीशंस दी गई. पोजीशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर क्लियरली एस्टेब्लिश. मैंने आपको अभी शो करके भी दिखाया पीरियोडिक टेबल में, इनकी जो पोजीशंस है वो क्लियरली हमें एग्जामाइन है. पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, इट मेक्स द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्वाइट क्लियर. हमें ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की पोजीशन भी क्लियरली पीरियोडिक टेबल में दिख रही है. Properties of elements, it reflects the differences, trends and the variations in the properties of the element. periodic table को देखकर हमें उनके differences, trends जो हैं वो almost clearly visible हैं. This table is simple, systematic and easy way of remembering the properties of different metals. Metals, non-metals और metalloids को याद रखने का भी ये एक simple और systematic way है जिससे बच्चों को easily याद रख सकते हैं वो उनकी properties, metals, non-metals, transition inner elements. Okay students? So class 10, these are some of the advantages or merits of the periodic table. I hope आपको आज का वीडियो लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया वो आपको समझ आया होगा. If there is any query in your mind, do ask me in your doubt session students. In next video lecture, we will discuss some of the disadvantages. जो कुछ disadvantages या anomalies रही होंगी modern periodic table में उनको discuss करेंगे. Then we will discuss about characteristics of groups and periods in details. क्या क्या हमने अभी तो हमने modern periodic table के हिसाब से पढ़ा ना, अभी हम turn wise turn जो है one by one groups और periods की characteristics को discuss करेंगे next video lecture में. Okay students, thank you, have a nice day.